Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत, सभी को दंडवत प्रणाम और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। मंगलाचरण प्रार्थना कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लेते हैं आज। तो हम श्रीमद् भागवतम में से 10वें स्कंद में से दूसरे अध्याय में से एक श्लोक ले रहे हैं, श्लोक संख्या 8। 10वां स्कंद में से दूसरा अध्याय है देव, और उसका 8वां श्लोक है। देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या
udare sanniveshaya. Within the womb of Devaki is my partial plenary expansion known as Sankarshan or Shesha. Without difficulty, transfer him into the womb of Rohini. Purport. The first plenary expansion of Krishna is Baldev, also known as Shesha. The Shesha incarnation of the Supreme Personality of Godhead supports the entire universe. And the eternal mother of this incarnation is Mother Rohini. Because I am going into the womb of Devaki, the Lord told Yogamaya, the Shesha incarnation has already gone there and made suitable arrangements so that I may live there. Now, he should enter the womb of Rohini, his eternal mother. In this connection, one may ask how the Supreme Personality of Godhead, who is always situated transcendentally, could enter the womb of Devaki, which had previously been entered by the 6 asuras, the Shadgarbhas. Does this mean that the Shadgarbhasuras were equal to the transcendental body of the Supreme Personality of Godhead? The following answer is given by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. The entire creation, as well as its individual parts, is an expansion of the energy of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, even though the Lord enters the material world, he does not do so. This is explained by the Lord himself in Bhagavad Gita 9.4.5. Maya tatamidam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarvabhutani na chaham deshu avasthitaha na cha matstani bhutani pashyame yogamaishwaram bhutabrinna cha bhutasto amatma bhuta bhavanaha. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, myself is the very source of creation. Sarvam khalu idam brahma. Everything is an expansion of Brahman, the Supreme Personality of Godhead. Yet everything is not the Supreme Godhead, and is not everywhere. Everything rests upon him, and yet does not rest upon him. This can be explained only through the Achintya Bhed, Abhed philosophy. Such truths cannot be understood, however, unless one is a pure devotee. For the Lord says in Bhagavad Gita 18.55, Bhaktya mam abhijanati yavan yaschashmi tattvataha. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. Even though the Lord cannot be understood by ordinary persons, this principle should be understood from the statement of the Shastras. A pure devotee is always transcendentally situated because of executing 9 different processes of Bhakti Yoga. Shravanam, Kirtanam, Vishnoho, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam. Thus, situated in devotional service, a devotee, although in the material world, is not in the material world. Yet a devotee always fears. Because I am associated with the material world, so many contaminations affect me. Therefore, he is always alert in fear, which gradually diminishes his material association. Symbolically, Mother Devaki's constant fear of Kamsa was purifying her. A pure devotee should always fear material association, and in this way all the asuras of material association will be killed, as the Shadgarbhasuras were killed by Kamsa. It is said that from the mind, Marichi appears. In other words, Marichi is an incarnation of the mind. Marichi has 6 sons: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, lust, anger, greed, illusion, madness, and envy. The Supreme Personality of Godhead appears in pure devotional service. This is confirmed in the Vedas. Bhaktir evainam darshayati. Only bhakti can bring one in contact with the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead appeared from the womb of Devaki
And therefore, Devaki symbolically represents bhakti, and Kansa symbolically represents material fear. When a pure devotee always fears material association, his real position of bhakti is manifested, and he naturally becomes uninterested in material enjoyment. When the 6 sons of Marichi are killed by such fear, and one is freed from material contamination, within the womb of bhakti, the Supreme Personality of Godhead appears. Thus, the 7th pregnancy of Devaki signifies the appearance of the Supreme Personality of Godhead. After the 6 sons, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mad and Matsarya are killed, the Shesha incarnation creates a suitable situation for the appearance of the Supreme Personality of Godhead. In other words, when one awakens his natural Krishna consciousness, Lord Krishna appears. This is the explanation given by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Hare Krishna. तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है। ये फेस्टिवल या ये उत्सव हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। प्रभुपाद जी तो कुछ प्रवचन में कहे भी हैं कि भक्तों के लिए प्रत्येक दिन जन्माष्टमी के समान है, क्योंकि कृष्ण का जन्म हमेशा कोई ना कोई ब्रह्मांड में होता ही रहता है। जैसे सूरज प्रतिदिन उदित होता है और अस्त हो जाता है, वैसे ही भगवत गीता में तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं एक श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण के भी प्राकट्य किसी न किसी ब्रह्मांड में होता ही रहता है और किसी न किसी ब्रह्मांड से वो अव्यक्त होते ही रहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर दिन ही जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। लेकिन जब कोई विशेष दिन में कोई विशेष घटना होती है तो ये एक स्वभाव है मनुष्य का कि उस दिन के प्रति एक एक्साइटमेंट, एक स्पृहा जागृत हो जाती है कि हाँ, वो विशेष दिन आने वाला है, वो अच्छा दिन आने वाला है, वो शुभ दिन आने वाला है। तो उस एक्साइटमेंट में, उस स्पृहा में व्यक्ति उत्साह के साथ, उत्कंठा के साथ कुछ विशेष कार्य करना चाहता है। जन्माष्टमी से संबंधित जो भगवान के जन्म की कथा है, लीला है, वो तो हम बहुत बार सुने ही हैं, कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। लेकिन यहाँ पर जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी विषय समझा रहे हैं, उस पर हमें आज का दिन चिंतन करना चाहिए। ये श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि जिस प्रकार देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते ही हैं, तो वो उनके हृदय में प्रकट हो सकते हैं। देवकी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में तो थे ही, लेकिन उनके गर्भ से वो कृष्ण के रूप में प्रकट कैसे हुए, उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। देवकी के हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति थी, उसने कृष्ण को जन्म दिया। प्रभुपाद जी समझाते हैं, वैसे ही हम सभी जो साधना कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का, हमारे जीवन में कृष्ण का प्राकट्य हो, हमें कृष्ण का दर्शन मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने हृदय को कृष्ण के आने के लायक बनाना होगा। देवकी के गर्भ में पहले 6 बच्चे आए, जिनको कंस ने एक एक करके मार दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस घटना को मेटाफोरिकली हमें शिक्षा देने के लिए इस प्रकार समझाते हैं। वो बोलते हैं कि वो जो 6 शिशु देवकी के गर्भ में आए थे, वो 6 षड रिपु या षड दोष के रूप हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और वो कहते हैं कि बहुत सुंदर उपमा है ना यहाँ पे, कि कंस वो भौतिक भय को रिप्रेजेंट करता है, देवकी एक भक्त को रिप्रेजेंट करती है या भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो भगवान के महान भक्त वैष्णव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि
जैसे देवकी को सदैव कृष्ण कंस का भय बना रहता था, उसी प्रकार से एक भक्त को सदैव भौतिक जीवन का, भौतिक संग का भय बना रहना चाहिए। कंस भौतिक संग का यहाँ पर प्रतिनिधि कर रहा है, मटेरियल एसोसिएशन, मटेरियल लाइफ। ये जो भौतिक जीवन का भय है, ये भक्तिमय जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। देवकी कंस का भय कर रही थी, साथ ही साथ कृष्ण का चिंतन भी कर रही थी, भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। तो यहाँ पे दोनों बात एक साधक के लिए सीखने की शिक्षा के रूप में आती है। क्या कि कृष्ण का चिंतन हो, उसके साथ साथ माया का भय भी होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्त इस चीज में धोखा खा जाते हैं। ये दो बातें हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण, माया के प्रति अनासक्ति या माया से दूर जाना। तो कुछ भक्त होते हैं, वो अपना सदैव चिंतन इसी पे लगा के रखते हैं कि हमें तो माया से बचना है, हमें तो माया से बचना है, हमें तो माया से बचना है। लेकिन वो जो सकारात्मक कार्य है, कृष्ण के प्रति आकर्षित होना है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, वो बस माया का चिंतन करते रहते हैं। कुछ भक्त हैं वो केवल सकारात्मक रहते हैं, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण लीला सुनो, कृष्ण भजन गाओ, लेकिन माया के बारे में, माया कैसे हमें फंसाती है, माया कैसे कार्य करती है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान मत दो। यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि भक्त को दोनों साथ साथ करना चाहिए। कृष्ण का चिंतन तो चलते ही रहना चाहिए, साथ ही साथ माया कैसे हमें परेशान कर चुकी है, कर रही है और आगे भी करेगी, माया के संग से कैसे हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है, इसका चिंतन भी सदैव चलते रहना चाहिए। आपने अगर ईशोपनिषद ग्रंथ पढ़ा है तो उसमें एक मंत्र आता है जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अमृत का आस्वादन करना चाहता है, उसे अविद्या और विद्या दोनों के बारे में बताना चाहिए। विद्या कृष्ण का संबोधन करता है, अविद्या माया को संबोधित करता है। तो दोनों साथ में चलना चाहिए, कृष्ण के प्रति आकर्षण, माया से भय। देवकी कंस का भय करती थी, तो उस भय ने क्या किया, वो भय जो कंस के प्रति था, वो भय ही उसके 6 बच्चों का, जो कि काम, क्रोध, रूप इत्यादि को दर्शाते हैं, उनकी मृत्यु का कारण बन गया। जब तक भौतिक जीवन का, भौतिक संग का भय नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में से ये जो शत्रु हैं, काम, क्रोध इत्यादि, ये परास्त नहीं होंगे। और ये जब तक परास्त नहीं होंगे, तो वो जो हृदय का स्थान कृष्ण का क्षेत्र है, कृष्ण का रहने का निवास स्थान है, कृष्ण का धाम है, वो कृष्ण के लिए खाली नहीं होगा। जैसे देवकी के घर में ऑलरेडी अगर कोई बच्चा है, तो कोई दूसरा बच्चा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो देवकी के गर्भ में ये जो 6 बच्चे आए और इनको फिर कंस ने मार दिया, तो फिर देवकी का गर्भ जो है कृष्ण के आने के लायक बन गया। वैसे ही हमारे हृदय में जो काम, क्रोध इत्यादि हैं, इसको भक्ति से हम दूर चले जाएंगे, भौतिक संग करेंगे तो, भौतिक सुख भोगेंगे तो, भौतिक जीवन में व्यस्त रहेंगे तो इसका जो भय है वो क्या करेगा, वो भय ही हमारे हृदय में से इन 6 शत्रुओं को मार देगा, खत्म कर देगा। इन 6 शत्रुओं को मारने के लिए हमें किसी हथियार की, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। भौतिक जीवन का भय होना चाहिए, डर लगना चाहिए संसार से, संसार के कार्यों से, संसार में जो संग होता है हमारा, उससे। तो वो जो भय है वो अपने आप समय के साथ इन 6 शत्रुओं को हृदय से मार डालेगा, निकाल देगा, और फिर हमारा हृदय कृष्ण के आने के लिए पर्याप्त मात्रा में तैयार हो जाएगा, कृष्ण का जन्म होगा।
तो इस तात्पर्य से क्या समझा जाता है? प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ जन्माष्टमी आ गई है, आप लोग एक दिन के लिए कृष्ण भावना भावित हो जाओ, मंदिर आ जाओ और खुशियां मना लो, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और खुशी बनाकर फिर आप अपने घर दोबारा चले जाओ और फिर आपका जीवन वैसा का वैसा ही रह जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, जन्माष्टमी का अर्थ ये है कि जैसे कृष्ण ने देवकी के घर में आना स्वीकार किया, वैसे कृष्ण हमारे हृदय में भी आना स्वीकार करें। हमें कृष्ण को जन्म देना है। कहाँ? अपने हृदय में, अपने घर में, अपने जीवन में। और वो तभी होगा जब हम उस अनुभव से गुजरेंगे जिस अनुभव से देवकी गुजरी थी, है ना? उसका अनुभव क्या था? उसका अनुभव ये था कि उसको बड़ा भय था उन दिनों में जब वो कंस के कारागार में रहती थी। वैसा भय जब एक साधक के हृदय में आ जाता है भौतिक जीवन को लेकर, तो वो साधक का हृदय भक्ति के लिए तैयार हो जाता है। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। तो इसलिए एक डिवोटी को, एक भक्त को भौतिक संसार को लेकर वैसा एक्साइटमेंट नहीं होता है जैसा कि एक सामान्य इंसान को होता है। एक डिवोटी समझता है कि जैसे कि देवकी एक कारागार में थी, हम भी इस भौतिक संसार के कारागार में। जैसे देवकी को कंस का भय हमेशा था, हमें भी हमेशा भय रहता है भौतिक संग का, भौतिक सुख भोगने की इच्छा का ना। और जैसे देवकी उस भय से प्रभावित होकर अपना समय बिताई, वैसे हमें भी संसार में उस भय से प्रभावित होकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अब वो भय अगर किसी के हृदय में हो तो क्या वो एक पंगु व्यक्ति की तरह बन जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि देवकी इतने भय में थी, लेकिन देवकी कभी कमजोर नहीं पड़ी, क्योंकि उसको विश्वास था कृष्ण पे कि कृष्ण रक्षा करेंगे। उसी प्रकार से जब एक भक्त साधक के अवस्था में होता है, साधना कर रहा होता है, तो उसके जीवन में जब इस प्रकार से परिस्थितियां आती हैं, है ना, जो उसके शुद्धिकरण के लिए भगवान ने बनाई है, जैसे अभी देवकी का शुद्धिकरण होना बाकी था, तभी तो कृष्ण प्रकट होते ना, तो वैसे हर जीव का हृदय का शुद्धिकरण होना बाकी है जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान उसके शुद्धिकरण की व्यवस्था करेंगे। शुद्धिकरण कैसे होगा? वो शुद्धिकरण होगा जब वो अपने हृदय में से इन सभी दोषों को हटा देगा। और वो दोष हटेंगे कैसे? जब वो भय में रहे, भौतिक जीवन के भय में। एक पुरानी कथा है जिसमें बताया जाता है कि जब एक बच्चे को अपने माता पिता का भय नहीं होता है तो उस बच्चे में अच्छे गुण विकसित नहीं होते हैं। एक शिष्य में गुरु का भय नहीं होता है तो उसमें अच्छे गुण विकसित नहीं होते हैं। एक पत्नी को अपने पति का भय नहीं होता है तो वो धर्म के मार्ग में नहीं चलती है। जब एक बड़े पुरुष को अपने माता पिता का भय नहीं होता है तो वो धर्म के मार्ग में नहीं चलता है। तो ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि भय, जिसको आज के समाज में बहुत ज्यादा वैसा किया जाता है, घृणित किया जाता है, अरे बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए, भय तो बहुत गलत बात है, भय क्यों भय होना चाहिए, आपको बिंदास रहना चाहिए। इन शास्त्र कहता है कि भय के माहौल में ही व्यक्ति जागरूक होता है, अपनी कमियों को देखता है और अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। तो उस प्रकार का भय हमें माया के प्रति या माया के वस्तुओं के प्रति होना चाहिए, भौतिक संग के प्रति होना चाहिए। और वो भय क्या करेगा? धीरे धीरे हमारे हृदय को शुद्ध कर देगा। जैसे कि देवकी का गर्भ पवित्र हो गया, और उस पवित्र गर्भ में भगवान प्रकट हुए। पहले भगवान ने बलराम जी को भेजा जो कि गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी प्रकार से जब भौतिक संसार के प्रति जब हम भयभीत होने लगते हैं, ये संसार हमें ऐसा लगता है कि ये संसार हमें खा जाएगा, काट खाएगा, वैसे हमें ये संसार लगने लगता है। ये संसार के लोग,
इस संसार के रिश्ते नाते, इस संसार में जो हम कर्म करते हैं, हमें ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत हो गया, चारों तरफ से मैं परेशान हो गया। उस भयभीत अवस्था में व्यक्ति जब चला जाता है, तब वो भय क्या करता है, उसका हृदय को तैयार करता है आध्यात्मिकता में रुचि लाने में, है कि नहीं? ऐसा देवकी के साथ में हुआ। तो अब यहाँ पे एक बात देखी जाए तो ये बहुत सोचने लायक बात है कि देवकी के घर में वो जो 6 शिशु आए, जिनको काम क्रोध इत्यादि का प्रतिनिधि माना जाता है, उनके बाद में देवकी के गर्भ में बलराम जी आए और फिर श्री कृष्ण आए। ये जो 6 शिशु आए, ये 6 शिशु देवकी को प्राप्त किससे हुए? वसुदेव जी से ही हुए, नहीं? और वसुदेव के संग से ही देवकी को बलराम जी भी मिले, वसुदेव के संग से ही देवकी को कृष्ण भी प्राप्त हुए। ऑफ कोर्स कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के शारीरिक संबंध से नहीं हुआ, लेकिन पति के द्वारा ही पत्नी को शिशु प्राप्त होता है ना? तो यहाँ पर हम ये चीज समझ सकते हैं कि जब तक व्यक्ति भक्तिमय जीवन में नहीं आता है, जब तक व्यक्ति के जीवन में भगवान प्रकट होंगे ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा होती है, जब तक भक्ति का आना व्यक्ति के हृदय में शुरू नहीं होता है, तब तक तो उसके जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध इत्यादि, उसको शत्रु के रूप में प्रतीत भी नहीं होते हैं। तब तक तो वो उसके मित्र जैसे लगते हैं, है ना? ये 6 शत्रु हमारे शत्रु तभी बनते हैं जब हम भगवान को प्राप्त करने का अपना उद्देश्य जीवन में बना लेते हैं। उससे पहले तो ये शत्रु हमारे मित्र जैसे होते हैं और हम इनको मित्र ही मानते हैं। इसलिए आप सांसारिक व्यक्ति को बोलोगे लस्ट इज बैड, तो बोलेंगे नहीं, लस्ट इज वेरी गुड, है ना? उसी से तो पूरा संसार चल रहा है। अब बोलेंगे ग्रीड इज वेरी बैड, नहीं, ग्रीड इज वेरी गुड। ग्रीड के कारण तो व्यक्ति इतना जीवन में आगे बढ़ता है। अगर ग्रीड नहीं होगा तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट होगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? तो इस प्रकार से वो इन 6 शत्रुओं को शत्रु नहीं मानता। तो वास्तविकता में ये 6 शत्रु कब बनते हैं? जब हमारे जीवन में भक्ति का आगमन होना शुरू हो जाता है, जब ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि कंस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे वसुदेव का देवकी से विवाह हुआ था, कृष्ण का आगमन होगा ये निर्धारित हो चुका था, है ना? लेकिन कृष्ण के आगमन से पहले किनका आगमन हो गया? काम क्रोध लोभ इत्यादि शत्रुओं का आगमन हो गया, है ना? उसी प्रकार से जब जीवन में व्यक्ति को ये समझ में आने लगता आता है कि काम मेरा शत्रु है, क्रोध मेरा शत्रु है, लोभ मेरा शत्रु है, तो ये पहला संकेत है किस चीज का? कि भक्ति का आगमन होना शुरू हो गया है, कृष्ण का आगमन होना शुरू हो गया है। जिस व्यक्ति को अभी तक ये भी ना पता चले, ये भी ना लगे अरे काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, लोभ शत्रु है, इसका मतलब अभी तक तो भक्ति का आगमन होना भी शुरू नहीं हुआ है ना? अब कृष्ण का आगमन होना शुरू हो जाएगा तो पहले से संकेत मिलना शुरू हो जाएगा, पहले से ही हमें ये चीज गलत लगना शुरू हो जाएगी कि ये तो शत्रु है हमारे, इसमें दोष है, इससे हमें बचना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अब ये भगवान का एक प्लान होता है। कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। फिर उसके बाद में अगला श्लोक क्या बोलते हैं कि वैसे व्यक्ति के हृदय में जो अज्ञानता से अंधकार छाया हुआ है ना, मैं ही ज्ञान के दीप से उसको नष्ट कर देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, है ना? मैं उसको नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान किसी के हृदय में आते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं? भगवान उसके हृदय में गुरु को भेजते हैं, है कि नहीं? गुरु को भेजने से पहले भगवान क्या करते हैं? उस व्यक्ति को वैसा अनुभव देते हैं संसार में कि उसको ये संसार बुरा लगने लगता है, कड़वा लगने लगता है ना? उसको काम क्रोध इत्यादि
शत्रु के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। ये अनुभव देते हैं। बहुत सौ को तो ये अनुभव है ही नहीं, और जिनको ये अनुभव नहीं है, हमें समझ लेना चाहिए कि उनके जीवन में कृष्ण का आना अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन जिनका जीवन में ये अनुभव मिलना शुरू हो गया है कि काम मेरा शत्रु है, क्रोध मेरा शत्रु है, लोभ मेरा शत्रु है, ये अनुभव होना शुरू हो गया, उसको भौतिक जीवन से ही भय लगना शुरू हो गया, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि कृष्ण का जन्म होने वाला, भक्ति का जन्म होने वाला है, गुरु का आगमन होने वाला है। और उसके बाद में जब कृष्ण का या गुरु का आगमन हो जाता है, तो हम उनकी सहायता से धीरे धीरे वो प्रकट होते हैं। क्रमशः उनकी सहायता से हम इन शत्रुओं पर और जीत प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे इन शत्रुओं का पूरा विनाश हो जाता है, तो फिर कृष्ण पूरी तरह से हमारे हित में प्रकट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात को इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो ये भय जो भौतिक जीवन के प्रति होना चाहिए, ये हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें खुद से भी चिंतन करना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और हमें दूसरे भक्तों के मुख से भी सुनना चाहिए कि कैसे ये संसार में दुख है, कष्ट है, और हमें संसार से भयभीत रहना चाहिए कि हम गलत स्थान में आए, हम गलत स्थान में फंस गए, हमें यहाँ से निकलना है। भौतिक जो संबंध होते हैं, उसका बंधन होता है, हम उसमें फंस चुके हैं, हमें वहां से निकलना है। तो ये भय जो है, ये बहुत अच्छा भय है। इसलिए एक भक्त जो इस प्रकार से चेतना को बनाए रखता है, वो संसारिक व्यक्ति की तरह संसारिक कार्यों में हर्षित नहीं हो सकता, उसे हर्ष उल्लास नहीं हो सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जेल में हो और उसको सच में पता हो कि यार जेल का जीवन कितना गंदा होता है, वो जेल में सेलिब्रेशन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। वो हमेशा पछताएगा, हाय मैं जेल में क्यों आ गया, बाहर का जीवन कितना अच्छा था, अब मुझे बाहर जाने को दोबारा मौका कब मिलेगा, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, सदैव उसका वैसा चिंतन चलता रहता है। तो वैसे एक भक्त का जो गंभीर है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण को प्राप्त करने में, वो इस संसार में कभी सुकून से नहीं रह सकता है। उसको हमेशा भय रहेगा कि क्या, कि ये संसार सही स्थान नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये एंजाइटी उसको रहेगी, और इस एंजाइटी में की हुई भक्ति या साधना जो है, इस एंजाइटी में की हुई जो प्रार्थना है, वो भगवान तक और ज्यादा पहुंचती है। क्योंकि हम जब एंजाइटी में होते हैं, तो हम हृदय से प्रार्थना करते हैं भगवान से, है कि नहीं? नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है, तो इस श्लोक पे तो हमें इतना ही बोलना था। इस श्लोक का जो तात्पर्य था, प्रभुपाद जी जो इस बात को समझाए, यहाँ पर एक दो लाइन सब हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना। Symbolically, Mother Devaki's constant fear of Krishna was purifying her. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो कंस के प्रति निरंतर भय रहता था उनके मन में, वो उनकी शुद्धिकरण का कारण था। A pure devotee should always fear material association, and in this way all the asuras of material association will be killed. As the Shadgarbhasuras were killed by Kamsa. When a pure devotee always fears material association, his real position of bhakti is manifested, and he naturally becomes uninterested in material enjoyment. When the 6 sons of Marichi are killed by such fear, and one is freed from material contamination, within the womb of bhakti, the Supreme Personality of Godhead appears. तो ये कार्य करना है
निरंतर भय रखना है हृदय में भौतिक संग के प्रति, और भक्ति का माहौल बनाकर रखना है जिसमें कृष्ण का जन्म होगा। वो भक्ति का माहौल बनता कैसे है? भक्ति के 9 अंगों का कार्य करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। तो ये कार्य करके हम भक्ति का माहौल बनाते हैं, भौतिक जीवन के प्रति भय को भी साथ में रखते हैं। तो ये जब साथ साथ चलता रहता है तो धीरे धीरे 6 शत्रुओं का विनाश हो जाता है और कृष्ण का जन्म हो जाता है। और ऐसे जब कृष्ण का जन्म हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हो जाएगा तो हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे भगवान के, पूरी तरह से भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा और हम भगवान के धाम में लौटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाते हैं। तो आज का जन्माष्टमी का दिन जो है, हमें क्या करना चाहिए? ये श्लोक जो हमने पढ़ा या सुना, हमें इसका ऊपर चिंतन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे हम कीर्तन गाएं, हम जप करें, हम भगवान के लिए 56 भोग बनाएं, मंदिर में जाके हम कोई सेवा करें, हम कथा सुने, हम पुस्तक पढ़ें, या हम अन्य कुछ दैनिक कार्य करें, हमें हमेशा ये चिंतन रखना चाहिए कि आज कृष्ण का जन्म हुआ है और अगर मैं भी भगवान की भक्ति अच्छे से करूं, जो बताया गया उसका पालन करूं, तो कृष्ण का जन्म मेरे हृदय में भी होगा। मुझे भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आप मेरे हृदय में जन्म लीजिए। और इस प्रार्थना को हम या तो भगवान के पास जाकर उनके सामने खड़े होकर व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम इस प्रार्थना को एक पत्र में लिख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन या अन्य किसी ऐसे विशेष दिन में हमें भगवान को अपना हृदय व्यक्त करना चाहिए। और उसको व्यक्त करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम 15 मिनट, आधा घंटा निकाल कर भगवान को एक पत्र लिखें और उस पत्र में अपने भावनाओं को व्यक्त करें। जैसे कि आप किसी प्रेमी को अपना एक प्रेम पत्र लिखते हो, वैसे कृष्ण को एक पत्र लिखना चाहिए, है ना। और उस पत्र में हमें बताना चाहिए कृष्ण को कि क्या हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्या बाधाएं आ रही हैं, हमारा क्या हमारी क्या इच्छाएं हैं इस मार्ग पर, आध्यात्मिक इच्छाएं, हम कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहते हैं, हम कृष्ण के निकट कैसे आना चाहते हैं, हमें वो सब कार्य करना चाहिए। अब वो कैसे होगा? अगर आप किसी प्रेमी को पत्र लिखते हो तो आप पूरा दिन सोचते हो पहले तो मैं पत्र में क्या लिखूंगा, उसके बाद में आप पत्र लिखते हो, क्योंकि पहले के टाइम में ना अंडू नहीं होता था, डिलीट नहीं होता था, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, तो व्यक्ति पहले बहुत सोच समझ के लिखता था। तो वैसे हम आज के दिन में क्या कर सकते हैं, हम अभी तो सुबह का समय है, 9:15 बजा है, भगवान का अभिषेक रात को 12 बजे होगा, हमारे पास पूरा दिन है, तो हम पूरा दिन चिंतन कर सकते हैं कि हम कृष्ण को पत्र में क्या लिखेंगे, है ना, क्या बातें बताएंगे, क्या कहना है कृष्ण को। तो इससे पूरा दिन कृष्ण भावना भावित जाएगा और फिर शाम के समय हम 15 मिनट, आधा घंटा निकाल कर भगवान को एक सुंदर सा पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हैं और इसको कोई भी कर सकता है। आप अगर वर्किंग हो, आज आपकी छुट्टी नहीं हो, तो भी आप पूरा दिन सोच सकते हो मैं कृष्ण के पत्र में क्या लिखूंगा। अगर आप घर पे हो तो भी सोच सकते हो, मंदिर में हो, अलग अलग सेवा कर रहे हो तो भी सोच सकते हो। तो इस प्रकार हम कृष्ण भावना भावित रहने की कोशिश कर सकते हैं और अंत में, दिन के अंत में कृष्ण को एक पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको कोई प्रश्न पूछना हो, किसी को कुछ कहना हो, है ना, अपने हृदय से भगवान के प्रति कुछ उद्गार व्यक्त करना हो, तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने बहुत अच्छे से ये कैसे हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित रखे ये बताया, और
और इस तत्व को बहुत अच्छे से समझा प्रभु जी। भगवान कैसे जो है अवतरित होते हैं ये बताया प्रभु जी। खाली मेरा एक ऐसा जिज्ञासा था प्रभु जी कि हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वो गर्भ में आ रहे। आमतौर पे लोगों को जो है मतलब भगवान को भगवान इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो ये ऐसे कार्य ऐसी लीलाएं करते हैं कि गर्भ में आना। जैसे हमने देखा कि देवता भी जो है गर्भ को प्रार्थना करते हैं। तो इस चीजों को हम कैसे लोगों को समझाएं कि ये मतलब कोई साधारण कार्य नहीं, भगवान गर्भ में भी आ रहे हैं तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, भगवान को ये कैसे समझाएं, मतलब लोगों को ये कैसे समझाएं कि भगवान गर्भ में आ रहे हैं तो इस सामान्य कार्य नहीं। किसको समझाने की बात कर रहे हो आप? मतलब ऐसे साधारण लोग जो हैं हम उनको जो बताने की कोशिश करते हैं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान है। तो लोग बोलते हैं नहीं ये तो मतलब ये भी गर्भ से जन्म लेते हैं, ये भी मनुष्य लीला करते हैं। तो उसलिए प्रभु जी। तो सच बात तो ये है प्रभु जी कि देखिए ऐसे प्रकार के लोग हमेशा संसार में रहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखी है ना, कि हम जो भी ये स्वीकार करते हैं समझते हैं ये हम शास्त्र के आधार पर समझते हैं। हर चीज हमारे तार्किक समझ के अंतर्गत नहीं होती है, कुछ तर्क के बाहर की बातें भी होती है, लेकिन शास्त्र में दिया है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो वैसे लोगों को जिनको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है कि शास्त्र जो कहता है सही कहता है, आप उनको नहीं समझा सकते हो। शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी तो जब वो आधार ही नहीं मानेगा किसी सच्चाई का या सत्य का, तो फिर आप उस व्यक्ति को प्रूव कैसे करोगे कि ये सच बात है, ये सत्य है। तो जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं उनको समझाने की कोशिश करना हमें समझना चाहिए हमारी खुद की मूर्खता है या समय बर्बादी है। वो नहीं समझेंगे, उनको अपना समय चाहिए, टाइम चाहिए। हमें शास्त्रों को उन्हीं को समझाना चाहिए जिनको शास्त्र में श्रद्धा हो, या शास्त्र के प्रति जिनके हृदय में श्रद्धा को जन्म दिया जा सके। दो प्रकार के कैंडिडेट्स हैं जिनको हमको प्रचार करना चाहिए। अगर किसी के हृदय में शास्त्र के प्रति श्रद्धा को जन्म नहीं दिया जा सकता तो हमें उसको प्रचार भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उसके हृदय में पहले शास्त्र के प्रति श्रद्धा ला सकते हैं, है ना, आचार्यों के प्रति श्रद्धा ला सकते हैं, तभी हमको प्रचार करना चाहिए। नहीं तो आप समय बर्बाद कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और आप कोई विषय पे चर्चा करें, आप बोलो उस पुस्तक में मैंने पढ़ा था, मैं आपको बोलूं लेकिन मैं तो उस पुस्तक को मानता ही नहीं, मैं तो इस पुस्तक को मानता हूँ। तो वो आधार ही जब एक दूसरे का कॉमन नहीं होगा तो फिर हम एक दूसरे को साबित कैसे करेंगे कि मेरी बात सही है। इसलिए जब हम कोई भी बात का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, संसार के बारे में, तो उसका आधार वैदिक ग्रंथ है। कोई वैदिक ग्रंथ को ही न स्वीकार करे तो उसको क्या प्रचार करेंगे। इसलिए शुरुआत में हमें उसको वैदिक ग्रंथ में श्रद्धा वो बनाए उस प्रकार से उसको सिखाना होगा। वो श्रद्धा बन जाएगी, फिर हम वैदिक ग्रंथ के आधार पर उसको अलग अलग बातें सिखा सकते हैं कि ऐसा वैदिक ग्रंथ में दिया है या वैसा वैदिक ग्रंथ में दिया है, तो वो स्वीकार कर पाएगा। नहीं तो वो नहीं करेगा ही नहीं। इसलिए पैसा समय बर्बादी कर। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Prabhu, actually I was on the move and you made a point that we should be fearful of this material world and but we should not get depressed also, you said. So maybe I missed understanding it very well. So Prabhu, the material world actually even practically it is very fearful usually also.
and yes, for devotees it should be taken it as favorable. So Prabhu, just can you, but how do you still remain confident and bold with such a fearful environment? Maybe you said it also, but I was on the move, so I missed it. So if you could please just clarify or repeat. Thank you. धन्यवाद, थैंक यू। प्रश्न है कि हमें भौतिक संसार के प्रति भय रखना है, और वो तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि इतनी परेशानियां होती हैं, इतनी कठिन परिस्थितियां होती है, तो भय बना ही रहता है। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, तो ये कैसे होगा? हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे विकसित करें? तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आता है समर्पण से, कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के उपदेशों के प्रति। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, गुरु रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। वो कॉन्फिडेंस समर्पण के बिना नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस थ्योरेटिकल नॉलेज से भी नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, एक मनोभाव है। वो फीलिंग कब हृदय में आती है? जब हमारा भाव समर्पण का होता है, निर्भरता का होता है, और हमें जो आश्रय चाहिए वो हमें मिल जाता है ना? इसलिए जब हम हृदय से भगवान के प्रति अपने आप को आश्रित समझने लगेंगे या अनुभव करने लगेंगे, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भगवान तो मेरी रक्षा करेंगे। उसकी शुरुआत किससे होगी? उसकी शुरुआत आपके अनुभव से होगी। आप भगवान पे आश्रित होना शुरू कर दीजिए, तो फिर आप अनुभव में देख लेंगे कि भगवान तो रक्षा करते हैं, भगवान तो साथ देते हैं, भगवान तो विकट परिस्थिति में बचाते भी हैं, भगवान तो सही रास्ता भी दिखाते हैं। तो जब हम भगवान का हमारे निजी जीवन में इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने लग जाएंगे ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण की कृपा मेरे साथ। तो कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अकेले नहीं हैं। तो फिर वो एक केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रह जाएगा, वो आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मधुसूदन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है ना आपके पास? हाँ प्रभु, आ रही है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आज का क्लास बहुत ही अच्छा था। एक भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के आधार पर आपने बहुत ही एक अच्छे तरीके से, फिलोसॉफिकल तरीके से बताया प्रभु। इसमें आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट ये था कि माता देवकी के हिसाब से आपने बताया कि वो कंस से हमेशा भयभीत रहती थी और भगवान कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण रहता था। तो हमें भी उसी तरीके से रहना चाहिए, संसार से हमें भय में रहना चाहिए। प्रभु, आपने बताया कि 6 पुत्र उनके आए थे, तो उनकी आपने तुलना शास्त्रों में बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य से की गई। तो प्रभु, इसमें 5 होते हैं, 1 और 6 किस तरीके से हम, मतलब मैंने किस तरीके से देखें इसको प्रभु जी? 6 जो है ये 5 के 6 हुए ना प्रभु? काम, क्रोध, तो याद नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य 6 हो गए ना? मद, ओके। थैंक यू प्रभु। इंग्लिश में आप बोलेंगे लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, एनवी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, मेरे से एक मिस हो रहा था, तो वो आपने अच्छा बता दिया प्रभु जी। प्रभु, एक प्रश्न मेरा ये भी यहाँ पर आता है कि आपने बताया था कि भगवान कृष्ण
जैसे अगर हमारे जीवन में आएंगे तो हमें काम, क्रोध, ये जो 6 शत्रु है ना, हमको शत्रु के रूप में दिखते हैं, नहीं तो हमें ये अपने मित्र के रूप में दिखते हैं। और अगर लेकिन हमारे जीवन में भक्ति आ जाती है तो हमें ये 6 शत्रु के रूप में दिखते हैं। तो प्रभु, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अभी हमको लगता है कि ये हमारे शत्रु हैं, लेकिन कभी कभी हम इनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझें कि इसको हम मतलब क्या आज भी हम उनको अपना मित्र मानते हैं इसलिए उनके प्रभाव में आ जाते हैं, या कोई मायावी शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं? इसको कैसे हम समझें प्रभु जी, थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ, तो हम अभी भी उसको अपना मित्र मानते हैं, या फिर हम कभी कभी मित्र मानते हैं, कभी कभी शत्रु मानते हैं। हम पूरी तरह से सतर्क नहीं रहते। यस प्रभु जी, जैसे कि लगता है कि अभी आपने जो बोला सब सही है, काम, क्रोध, लोभ ये हमारे शत्रु हैं, हमें समझ में भी आ रहा है, इसकी वजह से हमारा भक्ति का पतन होता है। लेकिन कभी कभी हम इन कामनाओं में, इनमें इतना बहक जाते हैं, फिर वापस याद आता है ये तो बहुत गलत है, फिर वापस बैक आते हैं। तो ये मतलब जो अभी आपने बताया कि कभी शत्रु मानते हैं, कभी मित्र मानते हैं, इसका उत्तर यही रहेगा प्रभु। जैसे कि उदाहरण हम आपको देते हैं जी प्रभु जी। कि समझ लीजिए कोई एक माँ है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चा है तो बचपन से उसको अच्छे से पाला पोसा, अपना पूरा स्नेह उस पर डाल दिया, ठीक है। और वो बच्चा बड़ा होके एक बड़ा शराबी बन गया, माँ के ही कमाए हुए धन को लुटाने लगा। तो जब बच्चे की इस प्रकार के कार्य को माँ देखती है तो माँ तंग आ जाती है, और फिर कभी कभी सोचती है तेरा जन्म नहीं हुआ होता तो अच्छा होता है ना, होता है ना, हो सकता है। जी लेकिन समझ लो ऐसा माँ सोचे भी, माँ किसी दिन उसको बोल भी दे, फिर अगले दिन वही बच्चा अगर रोते रोते माँ के पास आ जाता है तो फिर माँ बोलती है चलो छोड़ो यार, है तो बच्चा मेरा ही। इसका मतलब क्या है कि परेशान होकर आप उस इंसान से थक भी गए हो, लेकिन उस इंसान पे फिर दया भी आ जाती है। तो वैसा है हमारा ना सिचुएशन काम, क्रोध इत्यादि से हो जाती है। हम इन सब से थक भी गए हैं, लेकिन हमारा इनके प्रति एक लगाव भी बन गया है। पूरी तरह से नहीं थके। जैसे कि माँ वैसे बच्चे से पूरी तरह से थक जाएगी तो क्या बोलेगी, अब तू घर से निकल जाओ, मुझे तेरा चेहरा ही नहीं देखना है कि नहीं, तुम अपना जीवन देखो, मैं अपना जीवन देखती हूँ। तो वो कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन आएगा तभी होगा सेपरेशन। वैसे ही हमारा भी इन सब के प्रति जब कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन होगा तभी सेपरेशन होगा। जी। कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, कभी कभी थोड़ा सा दूरियां हो जाएंगी, फिर कभी कभी कुछ करीबियां भी हो जाएंगी। तो इस भक्ति हमारे जीवन में आई या नहीं आई, इसका क्या हम समझें, इसको कैसे? जैसे आपने बताया था कि भक्ति आते हैं तो हमें ये शत्रु लगने लगते हैं, तो इस वक्त हम मतलब भक्ति हमारे जीवन में आई है या नहीं आई है? एक लास्ट प्रश्न बस ये। कोर्स आई है, क्यों नहीं है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी काम को इत्यादि शत्रु नहीं लगते हैं? लगते हैं, लेकिन कोई प्रभाव में आते हैं। प्रभाव में आते वो बात दूसरी है, लेकिन शत्रु तो लगते हैं ना। हाँ, शत्रु लगते हैं। कभी कभी आप खुद से परेशान नहीं हो जाते, अरे ये क्रोध मुझे कितना परेशान करता है, या इत्यादि इत्यादि, तो वो शत्रु तो लगता है हमें, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। वो प्रभाव क्यों आता है, वो होता है हमारे पर क्योंकि हम देव की माता की तरह निरंतर भय में नहीं रहते हैं इन शत्रु के प्रति, हम इनको अपना मित्र मान लेते हैं। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु, आपने इतना अपना कीमती समय और अपना एसोसिएशन लिया प्रभु, और बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी।
हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को दोबारा से जन्माष्टमी हैप्पी प्रभु जी। जन्माष्टमी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गोविंद की जय। श्री मधुसूदन प्रभु की जय।